day 3 of Python Nights. We are going to start in bit a minute. I guess recording started. Yeah, sure. Thanks a lot. Now, moving into the day 3 classes, we are going with the firstly the question. Okay, which I have given you in the homework part, or I can say, we can say how many of you have attempted it or completed it. I would be requesting, guys. You can simply raise your hands, thumbs up, thumbs down. You can simply do any kind of thing. It can. Yeah, Arul. Have you completed the question? You can. Yes, I completed. Yeah, how was the level of the question? Some questions are easy, some questions are No, the medium. homework question. No, the homework question only. About the homework question I am asking today. Firstly, right? So in today's lecture, what we are going to do is, firstly we will be looking into the section number 1, loop. What are the loops and what are the types of loop? How to use loop system. Then moving with the control statement commands. One, what are the control statement commands? How to use it and how what are the basic differences? Fine. I have in today's I have like done coded HTML file I am going with as a notes. Fine. Then in section number 2 we are going with the OOPS. As I have discussed in earlier class also, from day 3 we are going with the advanced Python. So in OOPS we will be looking into the concept of class, object, constructor, inheritance, polymorphism and these kind of stuffs. Fine. We'll be looking into the detailed definitions also. Sure. Is that fine for everyone? A thumbs up from everyone I should be requesting. Yeah, sure. Thanks a lot. So, one of the basic requirement of the section, if you are new into the section, is key. I would be requesting you to please make the session थोड़ा सा interactive. So fine. And if I'm going with the thumbs up, thumbs down, I would be requesting you all to go for a thumbs up, thumbs down, or you can simply open your mic. We have opened it. Sure. Give me a second. Like team, why not? Can you please tell me? Can we accept the request from normal IDs also? Ashwin, I guess. Ashwini. Anyone from core team? Hello. Okay. So I would be requesting bro. I'm making you a co-host. If anyone enters, then you can add or do things. Sure. Fine. So we are moving with the day number 3. What are the loops? Can anyone किसी को पता है कि what are loops? So in this section, we are going with the loops. In the loops, there are two types of loop: for loop and while loop. And if I'm going with the definition of loop, a loop used to prepare is used to repeat a block of code multiple times until the condition is met. Fine. So the basic definition for a loop is, we can say a loop is used to repeat a block of code multiple times until a condition is satisfied or condition is done completely. So in the loop there are two types of things. The loops are, we can say normally loops are of two types: for loop and while loop. Moving with for loop. Why we use for loop? हम for loop क्यों use करते हैं? If you are moving with the definition, a for loop is used to iterate over the sequence, list, string tuple range. It automatically picks the value one by one. Fine.
if I'm moving with the actual or the simple definition, for loop is used when we know how many times we want to repeat something. Let's suppose we usually write in a code block for variable in sequence. ठीक है, ये चीज हम लोग बार बार लिखते हैं. ठीक है, तो ये हमारा लूपिंग का सिस्टम बताता है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस. सो हियर द फॉर इज लूप. एंड इज माय स्क्रीन विजिबल ना? एवरीथिंग गोइंग फाइन आई गेस. Receiver. Sure, that's a lot. Fine. So there is an example for I in range 5. Print I have written this. So इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली काम करता है, इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4 क्यों? क्योंकि मैंने आपको इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो रेंज जब भी ली जाती है वो n to n-1. Here n is 0 and n-1 होता है 5 - 1 4. एंड कभी भी इफ यू आर गोइंग विद द इंडेंटेशन और इंडेंटेशन कर रहा हूँ सॉरी इंडेक्सिंग वाला पार्ट, तो वी बेसिकली यूज 0 1 2 3 4. ठीक है, इतना चीज समझ पाया होगा. फॉर लूप वी बेसिकली यूज व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट समथिंग. ठीक है, इसका बेसिक सा सिंटैक्स होता है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, जो कि हम वी मेजरली राइट्स इन ए कोड ब्लॉक. एंड इफ यू आर गोइंग विद द एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल कह सकते हैं फॉर I in range 5 print I. तो इसमें I क्या प्रिंट करेगा? 0 1 2 3 4 because range takes n to n-1. Fine. So I would be requesting for loop सबको समझ में आया? Yeah, fine. Sure. Now moving with the while loop. While loop क्या बोलता है? While loop usually says when we want to repeat something until the condition becomes false. ठीक है, तो सिंपल सा चीज है. While loop runs only as the condition remains true, या फिर आप इसको बोल सकते हो जब तक ट्रू रहता है तब तक चलता है, नहीं तो फॉल्स में नहीं चलता. ठीक है, नॉर्मली द सिंटैक्स गोज while condition. ये कोड ब्लॉक में हम कोई भी लीड कोड या फिर काइंड ऑफ स्टफ्स में कर रहे होते हैं, तो while या फिर for loop we basically use. ठीक है, अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू 0 लिखा है एंड while काउंट लेस देन 5 है, प्रिंट काउंट, फिर वो काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 कर रहा है. इफ आपका पाइथन में कंप्लीट हो चुका है कोर्स, या फिर आपको ये प्लस इक्वल्स टू क्या चीज है? आई हैव रिपीटेड, मतलब कल भी हमने ये चीज देखी थी एंड टुडे आई एम आल्सो गेटिंग. प्लीज टेल क्या चीज है ये? Means count plus 1. हाँ, एक काउंट्स प्लस 1. इट्स ए काइंड ऑफ लूपिंग सिस्टम जो कि एक एक करके आगे बढ़ाते जाएगा. लेट सपोज वी हैव काउंट 0. पहले 0 काउंट करेंगे, 1 2 3 4. 4 तक कंडीशन विल बी ट्रू एंड ये लूप चलता रहेगा, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1. एंड जैसे 5 आएगा कंडीशन इज फॉल्स. ठीक है, कंडीशन इज फॉल्स, तो वो नॉर्मली फॉल्स में काम करना बंद कर देगा. सो इसका मतलब होता है फॉर व्हाइल लूप. फाइन, आई गेस इतना फॉर लूप एंड व्हाइल लूप सब दोनों समझ में आया होगा आई गेस सभी को. या किसी को कोई डाउट्स है तो यू कैन आल्सो आस्क और यू कैन सिंपली रेज योर हैंड्स प्लीज. Thumbs up from everyone if you are like getting the things or anything you want. Can you please explain while the statement? Which statement? While loop wala. Yes. Sure. For example, while loop says while loop runs as long as condition remains true. इसका मतलब we basically say, for example यहाँ पे वो count is equal to 0 है. ठीक है, एक लिस्ट दी है हमें, एक एम्प्टी लिस्ट दी है एंड वी आर गोइंग टू काउंट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी. ये वाली साइकिल में अप टू इंफिनिटी चलेगा. बट यहाँ पर तो हमने एक लूपिंग सिस्टम डाल दिया और इसमें कंडीशन है while काउंट लेस देन 5. हमें क्या करना है? वी हैव टू काउंट द नंबर्स व्हिच आर लेस देन 5 एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट द काउंट वैल्यूज. अब यहाँ पर कुछ अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या क्या चीजें आएंगी. ठीक है, 0 1 2 3 4. The output will be 0 1 2 3 4.
फाइन. नाउ यू विल से ये काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 क्या कर रहा है? दिस काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 वो इंक्रीमेंट करता है नंबर्स को. फॉर एग्जांपल फर्स्टली एक लूप में काउंट इज इक्वल टू 0 का लूप नीचे जाएगा, व्हाइल काउंट लेस देन 5, इट विल से लेस देन 5 ट्रू, तो वो 0 लिखेगा. देन इट विल गो प्लस 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, अप टू 4 ये जाएगा एंड ये पूरा रन होगा. 5 में रन नहीं होगा क्योंकि इट्स नॉट इक्वल्स टू और लेस देन 5. श्योर, समझ में आया? Yes, yes. हाँ, sure. तो we are now moving with the loop control statements. अब किसी भी चीज को अगर मेरे को रोकना है, कंटिन्यू करना है या फिर पास करना है, ब्रेक मीन्स रोकना किसी भी चीज को. इफ यू आर गोइंग विद द ठीक है, stop the loop immediately. Like for example, I am writing here for I in range 10 और यहाँ पर कितनी वैल्यूज जाएंगी? कोई मेरे को बता सकता है? हाउ मेनी वैल्यूज द रेंज विल टेक? Zero to nine. नो, हाँ 0 to 9. श्योर. सो यहाँ पे कुछ जो रेंज होता है ना, रेंज का नॉर्मली फॉर्मूला आप याद कर लो, n,n-1. तो यहाँ पर को रेंज अप टू 0 to 9 जाएगी. एंड द कंडीशन सेज इफ i डबल इक्वल्स टू 5, तो वो वहां पर को रुक जाएगा. ठीक है, तो अगर 0 से 1 के बीच में कहीं पर को भी 5 इक्वल्स टू 5 आया तो द प्रोग्राम विल ब्रेक और वो वहीं पर को स्टॉप हो जाएगा इमीडिएटली. लूप वहीं पर को खत्म हो जाएगा. फाइन. नाउ कंटिन्यूअस स्टेटमेंट सेज स्किप्स द करंट इटरेशन. इसका मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज, हेलो, I'm audible now? Yes. Yeah. For the अगर मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की डेफिनेशन बताऊं, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड ए लूप. ठीक है, इतना तो सबको पता है. तो स्किप द करंट इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन इन ए लूप. सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं आपको, एक पाइथन के अगर मैं पाइथन में कभी भी कंटिन्यू डालूं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है फॉर i इन रेंज 5, इफ i डबल इक्वल्स टू 2 कंटिन्यू. ठीक है, तो ये क्या करेगा? दो जो when 2 इक्वल्स टू 2 आएगा उसको छोड़ के वो सब चीज प्रिंट करेगा. 0 1 3 4. एक नीचे पे हम लोगों को कंटिन्यू के बाद प्रिंट स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी तो प्रिंट द वैल्यू ऑफ आईज. कितने आईज होंगे? 0 1 2. 2 को नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि हमें उसको स्किप करना है. फाइन. नाउ मूविंग विद पास. व्हाट इज पास? पास से यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि पास क्या बोलता है. प्लेस होल्डर्स डज नथिंग, वो कुछ करता ही नहीं है. ठीक है, इजीली अगर हम इसको डिफाइन करें तो पास स्टेटमेंट इज a null statement in Python. It does nothing when execution. ठीक है, अगर मैं एक इसमें जैसे मैंने यहाँ पर को for I in range 5 पास करा. Sir, can I? Then what is the point of using that? For? What is the point of using pass then? It does nothing, right? हाँ, तो it's very lessly used. ठीक है, these are the two important things जो कि हमारे कोड्स में we basically use in a maximum times. But pass is kind of if we are ending a thing, if we are like किसी भी चीज को we are skipping, तो एक जगह they have created a pass वाला चीज. So if we are going with the actual definition of pass is used as a placeholder when you don't want to write code, we can say yet. ठीक है, कभी भी हमें जो भी कोड्स होते हैं या फिर उसको नॉर्मली प्लेस होल्डर की तरह रखना पड़ता है. ठीक है, कभी भी हम रखते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग इफ ट्रू, ठीक है, वहीं पर को छोड़ देता हूं तो वो क्या करता है? हमारा पास कर देता है, उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करवाता, वो दूसरे में चले जाता है, नेक्स्ट में चले जाता है. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास. ठीक है, ब्रेक इज यूज्ड टू स्टॉप लूप. Yes, continue is not used to stop loop and pass is not used to stop loop. ठीक है, ये तीन चीजें आपको समझ में आई होंगी प्लस दो चीजें ऊपर की, while loop and for loop. किसी को कोई डिफरेंस या फिर कोई भी चीज है तो यू कैन आस्क.
Otherwise, we can continue. We are going to continue with the question. Fine. A thumbs up from everyone. I would be requesting, please. Yeah. Now moving with lead code. Take Today I am going to take the first question as one of the basic question. ठीक है, जो कि हम लोगों ने if you are a Python student also, तो we have done this question. किस किस को पता है पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम नंबर. Yeah, can you please define, एक बार माइक खोल के please define कर दो. What are the palindrome numbers? The words or letters which from starting for ending, if we read, it pronounce same or the value will be same from starting and ending. Okay, 100% fine. So, for example, if you are going to take 1 to 1 is a palindrome or Yes, 1 to 1 is palindrome, but 10 is not palindrome. 100%. So, if you have to write a logic, there is a given integer x and you have to write true. Return true if x is a palindrome and false अगर वो palindrome नहीं है. Can you write a kind of code which can identify the thing? Easy है, I guess. And if you've done, कितना ने यहाँ पर को पाइथन का कोर्स कर लिया है? Thumbs up from those जिसने पाइथन का कोर्स कंप्लीट कर लिया. Or you are having in this term, पाइथन के इस टर्म में हो आप. Yeah, कृष्ण प्रसाद, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग. ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम वाला आपको बहुत बार दिख जाएगा ओपीपी 1 में. ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स ये चीज रिपीट हुई है, तो मेक श्योर कर सकते हो, इसको आप लर्न कर सकते हो या फिर प्रोजेक्ट समझ सकते हो. फाइन. तो इफ यू आर गोइंग विद अ सॉल्यूशन, ठीक है, क्लास सॉल्यूशन नेक्स्ट, ये तो लीड कोड का एक टेम्पलेट ही है जो कि आपको मिल जाएगा. एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन इन पाइथन. श्योर, इज दैट फाइन फॉर एवरीवन? पैलिंड्रोम सबको समझ में आता है एंड हाउ टू डू अ थिंग वो भी चीजें समझ में आती है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन ए इफ कंडीशन. इफ x लेस देन 0 तो वो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स. व्हाई? बिकॉज -1 का मतलब नहीं होता है. ठीक है, -1 अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर को देखा, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो. इफ x इक्वल्स टू -1 to 1 एंड वो अगर उल्टा जाएगा तो 1 to 1 माइनस, तो वो पैलिंड्रोम नहीं होगा. तो वी बेसिकली सेज इफ कंडीशन सेज इफ x लेस देन 0 इट रिटर्न्स फॉल्स. देन मूविंग विद नंबर्स एंडिंग विद 0 आर नॉट पैलिंड्रोम. फाइन. सो ये दूसरी कंडीशन है कि नंबर्स एंडिंग विद 0 एक्सेप्ट 0 इटसेल्फ आर नॉट पैलिंड्रोम. तो हम उसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, वी विल बी राइटिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ इफ x% 10 इक्वल्स टू 10 और x डज नॉट इक्वल्स टू 10 तो वो रिटर्न करेगा फिर भी फॉल्स. इतनी चीजें समझ में आई. बिकॉज पैलिंड्रोम की प्रॉपर्टी बोलती है कि नंबर्स एंडिंग विद 0 तो वो पैलिंड्रोम नहीं है. फॉर एग्जांपल 10 1 0 अगर हम उसका उल्टा करते हैं तो 0 1 होगा. फाइन. तो वी हैव रिटर्न रिवर्स हाफ. ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया एक लूप में, ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ रिवर्सिंग ओनली हाफ ऑफ द नंबर. अब हमने वाइल अभी पढ़ा था. वाइल क्या चीज है आपको बताना? While the In the loop condition status, you said. Yeah, 100%. while the loop which continues till the condition remains correct, or which continues even if the condition is false, and then till the correct
condition comes. Yeah, 100%. Thanks a lot for going for the detailed answer. Now moving with the while loop. While x greater than reversed half. For example, if you are going with the 1 to 1, 1 to 1 को अगर हम रिवर्स करेंगे तो उसका आंसर भी तो 1 to 1 होगा. तो उसका जो भी रिवर्स होगा वो इक्वल्स टू आना चाहिए. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी हियर फॉर इवन लेंथ नंबर. पहली चीज है फॉर द इवन लेंथ नंबर. एंड व्हाई वी हैव रिटन हियर x डबल इक्वल्स टू रिवर्स्ड हाफ. ठीक है. वो क्या काम कर रहा है, x डबल इक्वल्स टू वो प्रॉपर्टीज को चेक कर रहा है. एंड थर्ड थिंग फॉर द ऑड लेंथ नंबर वो क्या कर रहा है, x डबल इक्वल्स टू रिवर्स हाफ डबल स्लैश 10. ठीक है. इसका मेरे को नाम याद नहीं है, सॉरी अभी. तो फॉर इवन नंबर्स इट बेसिकली चेक्स x डबल इक्वल्स टू रिवर्स हाफ करेगा. एंड फॉर ऑड नंबर्स वो क्या करेगा, x डबल इक्वल्स टू रिवर्स हाफ डिवाइडेड या डबल स्लैश 10. एंड देन वी आर गोइंग टू रिटर्न द वैल्यूज. ठीक है. पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन समझ में आया. एंड द थिंग्स स्टेप्स, कहीं भी किसी भी स्टेप में इफ यू आर गेटिंग डाउट और यू कैन say it to me. So, number ending with 0 is not a palindrome, so here we use that which is not divisible by 10 and the remainder. I understand, but after that reverse only half of the number. From here I didn't explain it. Okay, I'm going to, yeah, okay, sure, I'm going to explain you. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, पहली की जो कंडीशंस है, पहली इफ गोज x लेस देन 0, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो इट विल से कि वो भाई वो फॉल्स रहेगा, वो पैलिंड्रोम नहीं है. एंड इफ नंबर्स आर एंडिंग फ्रॉम 0 तो वो पैलिंड्रोम नहीं है. अगर 0 आता है तो ओनली द थिंग इज पैलिंड्रोम. फाइन. इतना चीजें आपको सभी को समझ में आई होगी. नाउ मूविंग विद द थर्ड पार्ट, रिवर्स ऑर्डर हाफ द नंबर. जो हमने रिवर्स हाफ इक्वल्स टू 0 है, ये क्या करता है, ये करता है इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग द होल नंबर वी रिवर्स ओनली द हाफ नंबर्स. ठीक है. सारे नंबर्स को हमें रिवर्स ना करने के बदले हम लोगों ने क्या करा, हाफ नंबर्स को रिवर्स कर दिया. देन वी आर मूविंग विद व्हाइल लूप. आई एम ऑडिबल ना सभी को? Yes, sir. अच्छा, तो ये जो स्टेप है इसको आप एक बार ध्यान से देखना. लाइन नंबर 14 टू लाइन नंबर 17. लाइन नंबर 14 और लाइन नंबर 17 तक वो क्या काम कर रहा है, पहले वो क्या काम कर रहा है, टेक्स डिजिट x डिवाइडेड बाय 10. सॉरी, ठीक है, वो पहले क्या काम कर रहा है, x डिजिट्स को ले रहा है, टेक लास्ट डिजिट x डिवाइडेड बाय 10. फिर द सेकेंड स्टेप गोज एड इट टू रिवर्स्ड हाफ. जो हमने ऊपर रिवर्स्ड हाफ वाली लिस्ट या फिर वो बनाई थी, ये जो एम्प्टी दिया था, इसमें वो जाके रिवर्स कर रहा है हाफ को. देन रिमूव द लास्ट डिजिट. ये जो हमने ये लिखा, रिमूव द लास्ट डिजिट x डबल स्लैश इक्वल्स टू 10. ठीक है. और उसके बाद क्या कर रहा है, वो उसको रिवर्स करके फिर द थिंग इज कि वो आउटपुट दे रहा है नॉर्मली. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसके बाद आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक नंबर है 1221. ठीक है. वी आर टेकिंग x इक्वल्स टू 1221. इटरेशन 1 में वो क्या काम करेगा, इटरेशन 1 में वो डिजिट 1 को लेगा, डिजिट इक्वल्स टू 1. ठीक है. और उसको रिवर्स हाफ करेगा. to 1. ठीक है. एंड वी विल बी गेटिंग ए वैल्यू ऑफ 122. ठीक है. इतना समझ में आया सभी को? पहली जो कंडीशन है, पहला जो इटरेशन है उसमें इतना काम होगा. सेकंड इटरेशन में क्या काम होगा, सेकंड इटरेशन में वो डिजिट लेगा तुम्हारा, डिजिट इक्वल्स टू 2, रिवर्स हाफ करेगा वो, इक्वल्स टू 12. एंड x की वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू होगी 2. ठीक है. ये एक वर्ड दिया है जो हमने एग्जांपल में लिया, पहला इटरेशन गोज दिस एंड सेकंड इटरेशन गोज दिस. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, हमें क्या चीज मिलेगी,
x equals to 12 and reversed, sorry for the typos, इक्वल्स टू 12। ठीक है, इतना चीज हमें यहाँ पर को मिलेगा और उसके बाद वो x को स्टॉप कर देगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। नाउ मूविंग विद द थिंग रिटर्न x एंड काइंड ऑफ स्टफ्स, ये क्या चीज है? ये हमने फाइनल चेक के लिए इफ द नंबर विल बी द, इफ द लेंथ विल बी ए इवन नंबर, तो वो x डबल इक्वल्स टू रिवर्स हाफ करेगा। अगर वो ऑड होगी तो वो क्या करेगा? x डबल इक्वल्स टू रिवर्स हाफ डबल स्लैश 10। ठीक है, इतना करेगा। अगर आपको यहां तक भी इफ यू आर नॉट गेटिंग ए थिंग, तो आई एम गोइंग विद अ स्मॉल एग्जांपल जो कि हम लोग यहाँ पर को लिख सकते हैं। 1 to 1, जैसे इसने भी हमें एग्जांपल दिया 1 to 1। ठीक है, रिवर्स हाफ, जब हमने रिवर्स हाफ स्लैश डबल स्लैश 10 लिखा है, ये जो हमने लिखा है इसमें यहाँ की वैल्यू आएगी, यहाँ पर को 1 आएगा पहले। फाइन, नाउ x डबल इक्वल्स टू द रिवर्स हाफ वाला पार्ट। ठीक है, अगर नहीं आया तो यू कैन ऑल्सो आस्क नाउ ऑल्सो। ठीक है, ये कंडीशन है ट्रू इस एग्जाम्पल के लिए 1 to 1, बिकॉज वो ऑड नंबर लेंथ है, तो वी विल बी सेटिस्फाइंग दीज काइंड ऑफ स्टफ्स। सभी किस किस को समझ में आया? हेलो, और यू आर गेटिंग बोर्ड? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। पहली चीज तो ये कि आपको पैलिंड्रोम समझ में आना चाहिए। ठीक है, पैलिंड्रोम क्या है एंड व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट द काइंड ऑफ स्टफ्स वी हैव टू डू, देन वी हैव टू मूव ऑन द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करो। इन दिस क्वेश्चन पैलिंड्रोम वाला पाइथन ओपीपी में भी मेनी टाइम द थिंग्स आर आस्क्ड। ठीक है, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई गेस या नहीं, वी आर मूविंग विद द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक्स हम लोग खत्म करते हैं, देन वी विल बी मूविंग इन अदर पार्ट्स। ठीक है, oops, now we are going with the oops, which is a kind of advanced Python, जो कि हमारे OPP में नहीं, but the concepts are asked। ठीक है, क्लास क्या होती है? कोई मेरे को डिफाइन या फिर मैं ही करता हूँ, रुको। A class is a blueprint used to create objects। ऑब्जेक्ट्स हमने कल पढ़ा था, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन है, आप अपनी डेफिनेशन अपने मन से भी लिख सकते हैं, बट आपको समझ में आना चाहिए क्लास, ऑब्जेक्ट, ये चीज क्या होते हैं। फाइन, सो कोई मेरे को डेफिनेशन, कोई ऑब्जेक्ट बता सकता है जो हमने क्रिएट करा कभी, कुछ भी? हेलो, आई गेस सभी सो गए क्या? गाइस, आर द मीटिंग, इज द मीटिंग गोइंग interactive or a kind of bore? Thumbs up, thumbs down, please. Only 2 reactions from 10. 3 reactions I am getting. We have Anumika and Shreya and Diksha and many more. Fine. So अगर कहीं पर कभी कुछ समझ नहीं आया तो you can simply ask guys. ठीक है. The simple thing is to do these classes is to create a motivation inside, like आपके अंदर motivation डालना for doing lead code or the practice more problem statements वाला चीज। ठीक है, व्हाट इज ए क्लास? क्लास होता है ब्लूप्रिंट। नॉर्मली से यू कैन, इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को डिजाइन करना या फिर किसी भी चीज को बनाने के लिए वी यूजुअली सेज क्लास।
ठीक है। अब अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल क्लास का देता हूँ, थिंक एक बार जो गाड़ी होती है कार, उसके बारे में सोचो। ठीक है, कार इज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, नॉर्मली अगर हम कहते हैं आप रोड्स में देखते हो कार या फिर जो भी चीजें चल रही होती हैं, ठीक है, कोई भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट ले लो आप, तो अगर हम कार का ऑब्जेक्ट लिया है तो कार जो भी रोड्स में चलती है तो वो एक टाइप की वी कैन से क्लास है। ठीक है, बट अगर हम जब उसको एक्चुअल में बाई करते हैं तो वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो आती है ऑब्जेक्ट के अंदर। एक कार है, जब वो रोड में चल रही होती है तो वो आपके लिए क्लास है, नॉर्मली ब्लूप्रिंट कह सकते हो। जब आप उसको खुद से खरीदते हो तो वो आपके लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। एंड क्लास डिफाइन प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो भी हम क्लास होती है, क्लास डिफाइंस प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल रोड में एक कार चल रही थी, उसका कलर क्या था, मॉडल क्या था, स्पीड कितनी थी। ठीक है, वो चल रही थी या फिर स्टॉप हो गई थी, बट फॉर द एक्शंस द थिंग वाज डूइंग, तो उसके अंदर आती है क्लास। ठीक है, अब हम नॉर्मली क्लास को क्रिएट करते हैं एक वर्ड से, क्लास कुछ भी, द क्लास यू आर गोइंग टू क्रिएट। अभी मैंने कार क्रिएट करी है तो मैंने एक यहाँ को कार की क्लास बनाई है, देन वी आर गोइंग टू पास इट। ठीक है, वो पास नहीं करना पड़ता, बट यू हैव टू डू। ठीक है, नाउ मूविंग विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको जैसे एक्सप्लेन करा, ऑब्जेक्ट इज कि जब आप एक कार को एक्चुअल में खरीदते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज ए रियल लाइफ थिंग विच इज क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास। जो क्लास को हम कह रहे थे ब्लूप्रिंट। फाइन, अब हमने जैसे क्लास कही थी, क्या कार जब चल रही होती है, जब वो आपकी नहीं होती तो इट्स ए नॉर्मली क्लास। जब वो आपकी हो जाती है एक्चुअल, आप जब उसको खरीदते हो तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट होती है। एंड उसको आप किस टाइप से डिफाइन करते हो। फॉर एग्जांपल जो कार वन है, कार वन इज इक्वल टू कार डबल ब्रैकेट्स, कार वन इज योर्स, एंड वो डिफाइन हो रही है कार्स से। ठीक है, तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं नॉर्मल। नाउ आती है कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर्स रन ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल इन पाइथन, जब आपने कभी डबल स्लैश इन डबल स्लैश देखा होगा, वीक 1 का क्वेश्चन नंबर 5 GRP है इफ यू आर गेटिंग, तो उस पे ये चीज होती है, इंट वाली चीज, इन इट। ठीक है, तो दीज आर थिंग्स जो की होती है कंस्ट्रक्टर, एंड दीज थिंग्स रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। फाइन, इतनी चीज समझ में आई? ये 3 चीज समझ में आ गई होंगी आई गेस। Now moving with inheritance. Inheritance क्या होती है? Inheritance is a feature of OOPS where one class gets the property and method of another class. एक क्लास को दूसरे के प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स मिलती हैं तो उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। अगर मैं इसको आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं, ए न्यू क्लास कैन रीयूज कोड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक क्लास बना दी एनिमल्स की या फिर किसी भी चीज की, तो वो डॉग्स भी उनके अंदर ही आएंगे प्लस कैट्स भी उनके अंदर आएंगी, तो क्लास बनी एनिमल, उसको यूज कर रहे हैं डॉग्स एंड कैट्स। ठीक है, तो इतना ही होता है इनहेरिटेंस का मतलब। यू कैन सिंपली राइट एग्जांपल ऑफ दिस, क्लास एनिमल डेफ, इतना इतना। एंड दीज थिंग्स, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, मूविंग विद पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलता है? पॉलीमॉर्फिज्म डिफाइंस मैनी फॉर्म्स, एक चीज के बहुत सारे फॉर्म्स होना, सेम फंक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल, एक मैंने डॉग बनाया या फिर एनिमल बनाया, ठीक है, उसमें मैं डॉग को भी यूज कर रहा हूँ, कैट्स को भी यूज कर रहा हूँ, काउ को भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है एक्चुअल में? डेफिनेशन इफ आई एम गोइंग टू टेल यू, पॉलीमॉर्फिज्म मींस many forms. In simple word, the same function or a method can behave different in different situation. For example, class बनी है dog, ठीक है, def sound self, तो print bark, तो dog क्या करता है? bark करता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ही तो ले रहा है, डॉग की प्रॉपर्टीज को वो प्रिंट आउट कर रहा है, तो उसके अंदर हम वी आर गोइंग विद द पॉलीमॉर्फिज्म। मूविंग विद इनकैप्सुलेशंस। ठीक है, इनके आप छोटे छोटे से कोड्स हैं,
these things you are using in your daily lives, daily codes and kind of stuffs. Encapsulation कहता है encapsulation is a process of wrapping data and methods together inside a class. For example, हमने जो ये डबल इनिट वाली चीज पढ़ी थी, ये क्या चीज थी? These are the constructors. ठीक है, एक क्लास बनाई है बैंक की, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर डाला है. एंड इफ आई हैव टू प्रिंट माई सेल्फ बैलेंस 1000, तो वो मेरे को प्रिंट करेगा 1000. तो इसका मतलब इनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग डेटा एंड कंट्रोलिंग एक्सेस ऑन. ठीक है, वो बैकएंड का पार्ट हाइड कर रहा है, बट वो एक्चुअल में जो आंसर होता है वो दिखाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मूविंग इन एटीएम मशीन, कभी भी आपने पैसा निकाला होगा, तो आप अमाउंट टाइप करते हो, बैकएंड का पार्ट नहीं देखते कि पैसा कैसे आ रहा है, कैसे आपके हाथ में सिर्फ मशीन से आ रहा है. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन. मूविंग विद एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शंस क्या बोलता है? एब्स्ट्रैक्शन इज एक किसी को कोई डाउट्स है? हेलो या हेलो सर, पॉलीमॉर्फेज एक बार फिर से बता दे. हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म में एक बार हाँ ठीक है, ठीक है. पॉलीमॉर्फिज्म में क्या बोलती है? पॉलीमॉर्फिज्म में सेज कि सेम फॉर्म. फॉर एग्जांपल, एक डॉग है, ठीक है. हमने यहाँ पर को, अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, एज ए फादर बिहेव वन वे, एज ए एम्प्लॉय बिहेव्स अनदर वे. ठीक है, एक पर्सन दो प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है और वो शोकेस कर रहा है. सेम पर्सन डिफरेंट बिहेवियर, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यहाँ पर को बैठे हो, आपको तो अभी अच्छा लग रहा है क्लास, एंड आपको थोड़ी देर में बोर हो जाओगे, तो वो आता है अंडर पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, फाइन. एक चीज के बहुत सारे फॉर्म्स होना, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. मूविंग विद द एब्स्ट्रैक्शन. Abstraction means hiding complex implementation details and showing the important features. ठीक है, इसका मतलब भी इनकैप्सुलेशन से ही, मतलब उतना नहीं है डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है. अब ये क्या बोलता है? ये फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग विद कहीं जा रहे हो, ठीक है. इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस इन ए सिंपल वे, यू कैन यूज द इम्प्लीमेंटेशन. आपको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं करना है, आपको सिंपल सा आउटपुट चाहिए, नॉर्मली कुछ नहीं करना. बट इनकैप्सुलेशन में आपको बैंक या फिर वहां तक काइंड ऑफ प्रोसेस तो करनी पड़ रही थी, बट बैकएंड की प्रोसेस नहीं करनी पड़ रही थी. एब्स्ट्रैक्शन में यू हैव टू डू नथिंग वाला पार्ट. ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द इंपॉर्टेंट फीचर्स टू द यूजर्स. इतना होता है एब्स्ट्रैक्शन का मतलब. फाइन, सभी को ये चीज समझ में आई? क्या एक सर थोड़ा और क्लियर नहीं हुआ? कौन सा वाला पार्ट? एब्स्ट्रैक्शन. हाँ, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड मेरा मेरे को बस एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं. Is my screen visible? Yes, sir. हाँ, बस एक सेकंड देना, आई एम चेंजिंग द स्क्रीन. सर, इट इज अ रिकॉर्डेबल लेक्चर. हाँ, meet is I guess recorded. Give me a second, I have to switch my screen, मेरा थोड़ा सा लैग कर रहा है. सर, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से देख सकते हैं? वायनाड के YouTube चैनल से. एब्स्ट्रैक्शन वाला स्क्रीन शो हो रहा है मेरा?
Right. Yeah. So abstraction is a key concept, is the one of the key concept of OOPS, OOP language. ठीक है, Object Oriented Programming Language. Its main goal is to handle complex problem by hiding unnecessary details from the user. ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो बट उसकी डिटेल्स को शो नहीं कर रहे हो, हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रिंट करा आपका नेम, ठीक है, इफ आई एम प्रिंटिंग योर नेम, तो मैं बैकएंड की चीजें नहीं दिखाऊंगा कि प्रिंट मैंने कैसे करा, मैंने उसको पहले इनपुट दी फिर वो करा, बट आई हैव टू शो यू द प्रिंट वाला चीज. ठीक है, if I'm going with the more details that enables the user to implement more complex logic on a top that provides abstraction without understanding or even thinking about the hiding complexities. ठीक है, अंदर की चीजें ना जान के बाहर की चीजें में ही आप आउटपुट निकाल रहे हो, और अंदर की चीजें क्या है, वो अननेसेसरी थिंग्स है जिससे आपको कुछ करना भी नहीं है, लेना देना ही नहीं है. फाइन, तो उसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन इन प्रोग्रामिंग. आप कुछ मत करा, आप ये जो की पॉइंट है, ठीक है, इतनी सी लाइन को आप पढ़ो, विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द एब्स्ट्रैक्शन वाला पार्ट. फाइन, कैन वी मूव इनटू द क्वेश्चंस वाला पार्ट. thumbs up or thumbs down किसी को समझ नहीं आया तो also you can take a screenshot, plus I am sharing the this link. फाइन, तो आप लोग यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन का वो आप ज्यादा पढ़ सकते हैं. मूविंग विद द क्वेश्चंस वाला पार्ट, एक आता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन द पाइथन ओपीपी इज zigzag क्वेश्चन. ठीक है, zigzag वाला इज ए मीडियम टाइप क्वेश्चन जो कि कंपलसरी आएगा पैटर्न प्रिंटिंग वाले क्वेश्चंस. फाइन, गिव मी अ सेकंड, आई एम स्विचिंग माय स्क्रीन. ठीक है, तो इस टाइप से पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन योर पाइथन ओपीपी क्वेश्चंस. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फाइन, तो ये क्या बोल रहे हैं, आई वुड बी रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू गिव ए 1 minute ऑफ टाइम, जो कि वो बोल रहा है, एंड वी हैव टू कंप्लीट इट. ठीक है, हम लोग अभी लाइव कोड करके कंप्लीट करेंगे. अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट, और किसी को समझ में आ गया तो प्लीज हेल्प. वी हैव टोटल ऑफ आई गेस 9 मेंबर्स टुडे. ठीक है, अभी हमारे पास half an hour, we can say 45 minutes are left, so we can go with 3 to 4 questions in today's lecture. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट zigzag कन्वर्जन, हमें क्या चीज करना है, एक स्ट्रिंग दी है, पेपल इज हायरिंग. हाँ ठीक है, एक स्ट्रिंग दी है, पेपल इज हायरिंग इज रिटन इन zigzag पैटर्न ऑफ ए गिवन नंबर्स ऑफ रो. ठीक है, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट. फॉर एग्जाम्पल s इज इक्वल टू गिवन, एग्जाम्पल में जाना. ठीक है, पेपल इज हायरिंग, नंबर नम रोज इज इक्वल टू 3 दिया है, and what's the output going on? PAH
PAHNAP, हाँ। तो जैसे ऊपर दिया ना, जैसे उसने नंबर ऑफ रोज दिए हैं 3, इट हैज डिफाइंड 3, तो उसने प्रिंट आउट करा है PANHP, PAHNAPL। हाँ, जैसे ऊपर पे दिया है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू हाईलाइट द पार्ट, ये वाला पार्ट चेक करिएगा, ठीक है। तो उसको प्रिंट करना है। इफ द नंबर ऑफ रोज आर गिवन हेयर 4, तो वो क्या प्रिंट करेगा, PIN, ठीक है। इसी टाइप से कन्वर्ट करना है, PINAL। उसका मतलब ये है कि हमें 3 रो, जैसे यहाँ पे 1 रो 2 रो 3 रो बनाई है, तो इसी टाइप से वी हैव टू कन्वर्ट एंड वी हैव टू गेट द आंसर, ठीक है। अब किसी को क्वेश्चन समझ में आया ये चीज जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा? थम्स अप, थम्स डाउन प्लीज। हेलो या सर, ये VS कोड में कर रहे हैं ना ये प्रोग्रामिंग? लीड कोड। लीड कोड, अच्छा। थिंग आई हैव शेयर्ड, द लिंक इज आल्सो शेयर्ड इन योर चैट बॉक्स। एक बार शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसको चेकआउट करो एंड यू कैन गो एंड कंटिन्यू द क्वेश्चंस। फाइन, तो आई गेस सभी को समझ में आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू राइट, अब हमें ईच केस का लिखना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू राइट, ठीक है। नाउ इफ आई एम राइटिंग इफ num rows इक्वल्स टू 1, मेक श्योर करना है कि यहाँ पे को जैसे दिया है नम रोज में r बड़ा है, तो मेक श्योर करो कि उसको बड़ा ही लिखना है। num rows इज इक्वल टू 1, और किसी का माइक ओपन है, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोड को भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि क्या चीज बोल रहा है। जो अभी हमने 8th एंड 9th लाइन लिखी है, वो क्या कर रहा है, एज केस को चेक कर रहा है, बस इतना काम कर रहा है, नथिंग एल्स। फाइन, अब मेरे को दूसरा केस बनाना पड़ेगा, रोज इक्वल्स ये एंड हैशटैग नम रोज, ठीक है। अब मेरे को इसमें डिफाइन करना है करंट रो इक्वल्स टू 0 एंड गोइंग डाउन इक्वल्स टू 4। Now I will be writing for CH get this current rows बस equals to 1 लिख सकता हूँ। अभी आप इसको लिखते जाइए, ठीक है। देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द ईच लाइन जो हम यहाँ पे को लिख रहे हैं एंड व्हाई वी आर राइटिंग दिस, ठीक है। इफ मैं यूज करता हूँ इफ कंडीशन, तो इक्वल्स टू 0 और current row equals to num rows minus 1 going down equals to none,
be and equal to 1 if when ठीक है. And after that, what we have to do, we have to only return dot join कह सकते हैं. So I'm going to test run this. Sorry for the typo. Going down is equal to not going down. Okay. Yeah, sorry for the too much kind of these things. ठीक है, एरर्स जो भी हम फेस कर रहे हैं करंट को या फाइन. ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि व्हाट वी हैव डन इन कोड. क्वेश्चन तो आई गेस सभी को समझ में आया होगा. नाउ मूविंग विद द एज केस हैंडल अबाउट द एज केस. एज केस क्या चीज थी? एज केस ये अपर मिडल एंड लोअर को हम तीन चीज डिफाइन कर रहे हैं एक स्ट्रिंग में. ठीक है, दे हैव गिवन अस द स्ट्रिंग. नाउ मूविंग विद द लाइन 8th and 9th लाइन, व्हाई वी हैव रिटन इफ num इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये क्या बताता है? इफ नो zigzag happens. ठीक है, अगर रो इक्वल्स टू और कह सकते हैं द ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्ट्रिंग जो कि हमने डिफाइन करी है यहाँ पर को. ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए ये क्या करेगा? ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा. बस इतना सा काम करेगा ये वाला पार्ट. नाउ मूविंग विद द स्टोरेज केस. अब हम क्या कर रहे हैं? रो इक्वल्स टू हमने जो ये चीज लिखी है लाइन नंबर 11 लिखी है. 11 लाइन नंबर क्या कर रहा है? ये कर रहा है स्टोरेज बना रहा है फॉर नंबर ऑफ रोज. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर को 1 2 3 रोज बनाई है या फिर किसी में 4 रोज होंगी तो उसके लिए वो रोज बनाएगा और उसको मल्टीप्लाई करते रहेगा. फाइन. नाउ मूविंग विद द ट्रैक पोजीशन. ट्रैक पोजीशन क्या बोल रहा है? ट्रैक पोजीशन करता है ट्रैक्स जो भी आपकी पोजीशन है. जो यहाँ पर को मैंने लिखा है करंट रो, उसका मतलब है विच रो यू आर करेंटली राइटिंग टू, या फिर कह सकते हैं विच रो यू आर करेंटली राइटिंग ऑन. अब जो मैंने उसके नीचे वाली लाइन में लिखा है गोइंग डाउन. ठीक है, ये डायरेक्शन फ्लैग है. ट्रू होता है मूविंग डाउनवर्ड्स और फॉल्स होता है मूविंग अपवर्ड्स. इस चीज को ध्यान में रखना कभी भी. ट्रू होता है मूविंग डाउनवर्ड्स एंड फॉल्स होता है मूविंग अपवर्ड. फाइन. एंड देन हमने लूप को स्टार्ट करा है और लूप को एंड करा है. इतना ही काम करा है. नथिंग एल्स वी हैव डन इन दिस कोड. ठीक है, दीज फ्रॉम 8 to 13 लाइन द कोड इज इंपॉर्टेंट थोड़ा सा. देन वी हैव टू राइट लूप एंड काइंड ऑफ स्टफ्स ओनली. ठीक है, ये चीज किसी को समझ में आई? थम्स अप थम्स डाउन प्लीज. हेलो. और आर यू करेंटली वर्किंग ऑन, या फिर कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आई? हेलो, आर यू देयर? यस सर, आई अंडरस्टैंड. वो समझ आ गया. वहाँ पे 3 कॉमा है तो मतलब वो रीड नहीं करेगा कोड में. वो वही कंफ्यूजन था. ओके. एंड किसी और को? लाइक वी हैव जयशंकर. जयशंकर ब्रो,
Sir, any doubts? हेलो. हाँ, yeah, any doubts? यहाँ पर मतलब इफ और फॉर अगर यूज कर रहे हैं तो मतलब वाइल का नहीं लगा रहे सर. वाइल इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि वाइल का रिक्वायरमेंट नहीं है. वाइल के अगर एक बार आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, वाइल बोल रहा है कि अगर ये चीज है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं. मतलब इफ ये बोल रहा है कि अगर ये चीज है तो ये काम करो, ये चीज है तो ये काम करो, एंड एग्जैक्टली हमको ये चीज चाहिए. इफ आई एम गोइंग विद द नोट्स, या फिर आप एक बार गूगल में सर्च करना, वाइल क्या करता है. वाइल बेसिकली कहता है जब कंडीशन ट्रू ही होती है वो तब तक ही चलता है, फॉल्स में वो नहीं चलता. बट हमारे में इसमें क्या केस है, गोइंग डाउन फॉल्स. फॉल्स का मतलब क्या है, डाउनवर्ड्स. ट्रू का मतलब होता है अपवर्ड. ठीक है, तो बेसिक सा चीज यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हमने तब वाइल का नहीं करा है, क्योंकि हमें डाउनवर्ड भी जाना है और डाउनवर्ड हमने फॉल्स से नोटिफाई करा है. ठीक है. ओके. वी हैव कृष्णा, अश्विनी सर and Shreya, Diksha. Any doubts in any kind? Like, sorry. No doubts, no doubts. Yeah, fine. ठीक है, तो I would be requesting you can take a screenshot of this question or you can practice it in your home also. Open with more problem statement वाले questions. Any questions if you want to. अब कौन सा question करें? Any like किसी की भी choice बताओ. एड टू नंबर्स तो ये बहुत इजी हो जाएगा. चलो कोई मेरे को करके दिखाएगा लाइव, इन लाइव चैट. कृष्ण सर, अश्विनी सर, हेलो. एडिंग ऑफ टू नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट दी है L1 2 3 4 एंड लिस्ट दी है L2 5 6 4. आउटपुट हमें देना है 7 0 8. ठीक है, और हमें कैसे क्या करना है, 3 4 2 एंड 4 6 5. We can solve this without linked list also, right? No. Yeah, you can solve with linked list also, but आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि about working. ठीक है, तो if I'm going to explain you the simple case कि what you have to do, list L1 is given 2 4 3 and L2 is given 5 6 4. What you have to do, इसका जो रिवर्स वाला पार्ट है, रिवर्स से आप देखोगे 3 4 2, उसको प्लस करना है, उसको एज ए नंबर लेना है एंड 4 6 5 को प्लस करना है उसके साथ. तो you will be getting the actual output. Then you have to reverse the thing. ठीक है, nothing else we have to do. Now कोई कर सकता है इसको solve please एक बार. You can try, like it's not a going to as a professional session also. ठीक है, you can try. अगर कहीं गलत होता है तो I will be there to help you please. अरे गाइस लेफ्ट मत करना भाई. The scene is कि we are doing for the practice वाला part only. स्नेहा कुमारी, you can try. Diksha Gupta, Shreya, Krishna, Ashwini, and many more. Two we have more. Preeti and Anamika. Anyone wants to try? Fine, so nobody is going to try the question. Now we have to do this. Fine. So firstly we are going to make a dummy node.
डमी लिस्ट आइटम 0 करेंसी इज इक्वल टू 0 नॉर्मली हम कह सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हो ठीक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे हैव प्रोवाइडेड अस नाउ व्हाट वी हैव टू राइट एक सेकंड if I'm going to solve this oh my god give me a second I have to do this okay. Is my screen visible? Hello. Sorry for the thing. There was a glitch, I guess. हाँ ठीक है तो अब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अभी मैंने रन टाइम एरर है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो व्हाट द थिंग आई हैव डन हियर पहले मैंने डमी नोड को लिस्ट नोट 0 ठीक है उसको बनाया क्योंकि टाइप L1 उसने लिस्ट नोड दी है L2 इज आल्सो लिस्ट नोड एंड R टाइप इज ए लिस्ट नोड वो भी एक लिस्ट नोड है ठीक है व्हाट आई हैव डन इज कि एक डमी लिस्ट बनाई है लिस्ट नोड 0 करेंसी इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू डमी ठीक है देन आई हैव रिटन कैरी इज इक्वल टू 0 यू कैन राइट हियर एक्स वाई जेड या फिर कोई भी चीज आप लिख सकते हो देन ओनली प्लसिंग एंड डिवाइडिंग बाय 10 ये चीज वाले फॉर्मूले यू हैव टू अप्लाई नथिंग एल्स यू हैव टू डू इन दिस केस ठीक है एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पार्ट्स अगर कोई कर रहा है साइड बाय साइड तो ठीक है अकॉर्डिंग टू स्टेप्स तो स्टेप्स को अगर हम देख रहे हैं L1 लिस्ट दिया हमें 2 4 3 एंड L2 लिस्ट इज 5 6 4 एंड व्हाट वी हैव टू डू 2 + 5 अगर हम करते हैं 7 तो कैरी हमारा आता है 0 एंड नोड्स हमारे आते हैं 7 ठीक है अगर हम नॉर्मली अगर हम इस टाइप से देखते हैं इन प्रॉब्लमेटिक वे 2 + 5 = 7 आई गेस किसी का माइक ओपन है ठीक है कैरी इक्वल्स टू 0 आएगा यहाँ पर को सॉरी एंड नोड में आंसर आएगा नोड इक्वल्स टू 7 ठीक है एक ये बनता है एंड सेकंड में हमारा क्या बनेगा इफ आई एम गोइंग टू गेट 4 + 6 10 आएगा 10 में कैरी 1 आएगा कैरी 1 वाई वी आर गोइंग टू डू इज क्योंकि यहाँ पर को 0 एक ही वैल्यू हमें लेनी है तो वी आर गोइंग विद द कैरी 1 और n की वैल्यू 10 आएगी carry will be 1 and 0 in node ठीक है जो हमारा कैरी आया था उसको हमें अगले वाले में प्लस करना है यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस आल्सो ठीक है 3 + 4 7 + 1 8 तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पर को आएगी वी विल बी गेटिंग n = 8 n = 8 एंड कैरी आएगा हमारा 0 एंड नोड में हमारा आएगा 8 तो वी विल बी गेटिंग द आंसर 708 ये सिंपल सा लॉजिक है आप अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है तो द सेम लॉजिक इज यूज्ड हियर जो कि हमने इसको सॉल्व करने के लिए बनाया ठीक है तो एक बार इसको चेकआउट करो द लॉजिक इज यू आर गेटिंग और नॉट देयर इज रन टाइम एरर का मतलब होता है बेसिकली जो कि हमारा the length is too long or a kind of stuff ठीक है we can decrease it or we can go with the smaller parts also ठीक है ये चीज समझ में ये वाला क्वेश्चन गाइस
हेलो या सर, ये जो प्रॉब्लम्स का लिस्ट आपने बना रखे हैं, जी, ये मतलब अगर प्रैक्टिस के लिए मिल सकता है क्या? नहीं देखो, हम लीड कोड से नॉर्मली खुद ही उठा रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स की लिस्ट है। अच्छा, या तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। यू कैन डू इन योर डेली बेसिस 5 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर, ठीक है। और उसके बाद डेली के 2 क्वेश्चंस यू हैव टू डू फ्रॉम योर होम। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो यू कैन सिंपली आस्क। ओके सर। फाइन, तो आई गेस सभी को समझ में आया ये चीज, ठीक है। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम होमवर्क। अभी आप लोग तो कोई भी 2 क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल इजी वाले, रोमन टू इंटीजर एंड लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, कोई मेरे को इन टुमारोज क्लास वी आर गोइंग विद द डिस्कशन, ठीक है। नॉट ए प्रॉपर, वी विल बी इन ए प्रॉपर क्लास, बट वो एज ए डिस्कशन होगा ऑफ योर होमवर्क। सॉरी फॉर द थिंग टुडे, थोड़ा सा मेरा हेल्थ खराब है, ठीक है। सो 2 क्वेश्चंस आर तो 12th बीच क्वेश्चन। होमवर्क, हाँ, होमवर्क कौन सा दोनों है? 13th एंड 14th आर योर होमवर्क। उसको आपको ट्राई करना है, सिंपल से ट्राई करना है, नहीं आएगा तो वी आर गोइंग टू टेल हियर। 13th एंड 14th नंबर। फाइव, फाइन। एंड कल को आई वुड बी रिक्वेस्टिंग, जो भी ज्वाइन करेगा मेक श्योर करेगा कि वो सॉल्व करे साथ में, ठीक है। आई एम थिंकिंग कि आप लोग बैक साइड में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, श्योर। तो किसी को डाउट्स नहीं आ रहे, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर जिसमें सबको डाउट्स आने चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग विद द लाइव शेयरिंग ऑफ स्क्रीन, और सब स्क्रीन शेयर करेंगे एंड दे आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन डेली एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम होमवर्क। फाइन, श्योर। सो फॉर टुडे, बीच कौन से चैनल पे आप बताए थे ये जो आपका ये रिकॉर्ड हो रहा है? like Ashwini sir, can you please guide in that for me? Fine. So we can conclude it here today. ठीक है, किसी को भी कोई डाउट्स आते हैं तो you can simply ask me in live meetings, या फिर you can DM me, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। So thank you for joining for today's class and sorry for going very small, ठीक है। From tomorrow's I'm doing a special announcement कि कल को सबसे everyone will be doing a screen share and everyone will be working, and 13th and 14th number question will be asked in class। कोई मेरे को explain करेगा, मैं करके नहीं आऊंगा। Fine? एक thumbs up from everyone, like we have 8 members here। Sure. So I would be requesting Ashwini sir, recording close कर दीजिए।